Hello students, welcome to the online classes of Vidyavan School. Subject it is English grammar today and the topic it is for the class 8th, 9th and 10th, and today's topic what I have taken is from your 8th class chapter grammar book, that is the determiners. So let us know about the determiners, its definition, what does it means, what are the kinds of determiners, and along with that how do we use in our daily life or while we write or read, how do we use these determiners. Let us see today. So before starting this, the thought of the day. So here I have written on my left hand side, you can see education without application is just entertainment. So it is explaining clearly that if you take the education from somebody, if you gain the education from an institution, from the teacher, from wherever it is, so if you are gaining it, bring it in your practice. Just don't learn for the sake of learning or just for the sake of entertainment. If you learn something, if you get the education or knowledge of something, it should always be used. It should be in practice. Only then the things what you gain, it will have its result or it will have its use, the benefit, the value. So now let us move towards the determiners. So what are the determiners? Here it is clear, I have already written a word. Determiner, it is a word that here introduces a noun. What it does? It introduces the noun. How? Just means before the noun it is placed and it is saying something about the noun. So always if any word which says something about the noun, means which introduces the noun, that type of words along with it is placed before a noun, as if I said always it comes before the noun to specify the possession. The possession here means the ownership, to whom this belongs to. The word belongs to what it belongs to. Possession यानी ownership होता है, relation होता है. वो जब बताता है कोई word, तब उसको हम determiners बोलते हैं. उसके साथ साथ along with this possession, it also specifies the quantity. किसी नाउन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी नाउन के बारे में हम बता रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी क्वांटिटी क्या है वो भी यहाँ पे ये शब्द जो है वो हमको बताता है. एंड और it clarifies what the noun refers to. It gives the clear aspect, the clear state of the noun कि noun क्या है actually, उसके बारे में जो क्लियर एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे हमको देता है. तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स. सो वंस अगेन आई विल रीड द मीनिंग. अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन. A word that is used to introduce a noun which is placed just before a noun. Why it is placed? To specify possession, to show the ownership, relationship or the quantity, or to clarify, or sometimes it is used to clear about the noun to which it refers to. So ये clear हो गया. कैसे? अब जैसे मैं बताती हूँ possession, a word that introduces a noun. जैसे कि मैं यहाँ पे noun बता रही हूँ house. You know house, it is a noun because it gives the meaning, the place. It explains the place. एक जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं. and it is noun. So जब आप यूज करते हो वर्ड my, पहले तो ये हाउस था सिर्फ एक घर के बारे में. हाउस यानी एक पिक्चर हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है, घर. बट माई हाउस बोलते ही अगर मैं बोलूँ आप लोगों को, सी स्टूडेंट्स दिस इज माई हाउस, तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर आ जाती है. ये जो है ये किसको बिलोंग करता है? मैम को बिलोंग करता है. सो इन द सेम वे योर बुक, ये बुक किसको रिलेट करता है? ये आपको रिलेट करता है. सो रिलेशनशिप बता रहा है. ये बुक जो है ये किसकी है?
yours means the student's book it is. Along with this, his son. Son means बेटा है obviously. बट ये किसका है? हिज सन, एक पर्सन को हम दिखाते हैं तो रिलेशन हो जाता है यहाँ पे. सो बिलोंगिंगनेस, द ओनरशिप यहाँ पे दिखाता है, यहाँ पे ओनरशिप, यहाँ पे रिलेशन, ये भी ओनरशिप. सो द वर्ड्स विच शोज द रिलेशनशिप, सो दे आर यूज्ड एज द पोसेशन, मीन्स दे क्लियर्स द पोसेशन, द ओनरशिप, द बिलोंगिंगनेस ऑफ द नाउन हियर. सो ऐसे ही जैसे कि हम क्वांटिटी का बोलते हैं, तो क्वांटिटी के लिए हम कैसे यूज करते हैं? क्वांटिटी वाले नाउन्स कौन कौन से हैं, किस वे में हम इसको यूज करते हैं? लेट्स सी. जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट आप क्वांटिटी कैसे बता सकते हैं? सो शोइंग इफ वी वांट टू से अबाउट द फ्रूट, ऑल फ्रूट्स, यानी वहां पे क्वांटिटी खूब सारी पड़ी है, एक बास्केट में पड़े हैं, वो कितने हैं नहीं पता, लेकिन ऑल बताने पर एक फ्रूट यानी सिंगल एप्पल होता है, वन फ्रूट यानी यहाँ पे वन क्वांटिटी बताता है, ऑल फ्रूट्स यानी सारे. इस वे में जब किसी नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं और किसी चीज को क्लियर करके बताते हैं, मीन्स ही हैज द डॉटर्स, ही हैज डॉटर्स, तो वहां पे कितने डॉटर्स है क्लियरली नहीं है, तो वहां पे बता दिया कि ही हैज 2 डॉटर. जब 2 हम यूज करते हैं तो यहाँ पे नाउन से पहले इसको यूज किया है, यहाँ पे भी नाउन से पहले इसको यूज किया है, 2 डॉटर्स, तो क्वांटिटी हम बता रहे हैं. इस तरह के वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं, जो पोसेशन, जो क्वांटिटी और नाउन के बारे में जो क्लैरिटी दिखाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज द डिटर्मिनर्स. सो लेट अस सी फर्दर हाउ इट इज यूज्ड. देन जस्ट बिलो दिस आई हैव रिटन वन मोर स्टेटमेंट. लेट्स सी दैट इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव. ये किसी एडजेक्टिव से पहले भी आता है, जैसे कि द ब्रेव बॉय. अब बॉय है, ये नाउन है, ब्रेव आपको पता है, ऑब्वियसली इट इज एक्सप्लेनिंग द क्वालिटी ऑफ नाउन. सो यहाँ पे दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, तो किसी एडजेक्टिव से पहले भी इनको हम यूज करते हैं, जिस डिटरमाइनर्स को या डिटरमिनर्स को हम यूज करते हैं. सो यहाँ पे द प्लेस किया है, नाउन से पहले यहाँ पे क्या आ गया है? एडजेक्टिव आया है, तो एडजेक्टिव से पहले हम कई बार इंडिटरमिनर्स को भी यूज करते हैं. द रिच ऑलवेज हेल्प्स द पुअर. द रिच जो है वो पुअर को हेल्प करता है, तो रिच, द पुअर. सो इन दोनों के सामने हमने द लगाया है, तो इस वे में हम इसको भी यूज करते हैं. सो द डिटर्मिनर इट ऑल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव्स where it is used to describe the noun. कभी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जब किसी शब्द को हम यूज करते हैं, किसी वर्ड को हम यूज करते हैं जिसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव से पहले भी इसको हम प्लेस करते हैं. सो द कंसेप्ट इज क्लियर आई थिंक स्टूडेंट्स. यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? इट इंट्रोड्यूसेस द नाउन. नाउन से पहले आता है, नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है. अलॉन्ग विद दैट पोसेशन भी यहाँ शो करता है, समटाइम्स क्वांटिटी और द क्लैरिटी. So in the second point we have seen it also comes before, sometimes it is a rule, according to rule it also comes before any other adjective used to describe the noun. So these two things are clear I think. So further the next step it is, let us move towards the types of determiners. तो अब ये determiners के बारे में हमने पढ़ा, तो इसको भी हम क्लासिफाई करते जाएंगे कि अब आप बोलोगे मैम कभी आपने ए यूज किया है, कभी द यूज किया है, कभी एन यूज किया है, अब कौन कौन से कैटेगरी में ये आते हैं, तो हाउ टू यूज व्हाट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, व्हेन टू यूज, व्हाट आर द रूल्स, उसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग ऑल दीज लेट मी इंट्रोड्यूस यू द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स दे आर 6 इन नंबर, वो 6 है. फर्स्ट इट इज आर्टिकल्स, सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव,
थर्ड पोसेसिव, जैसे कि पोसेशन को बताने के लिए यहाँ पे पोसेसिव यूज होता है, क्वांटिटी बताने के लिए क्वांटिफायर्स यूज होते हैं, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सब कैसे यूज होते हैं, किस वे में यूज होते हैं, वन बाय वन लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आर्टिकल्स। यू पीपल आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में लगभग सब जानते हैं। बेसिकली फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड वी स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स। दे आर कॉमनली AN THE द। फैमिलियर होंगे शायद, इनके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इनको यूज करना आपने सीख भी लिया है, बट स्टिल लेट मी स्टार्ट इट एंड लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन इन डिटेल। तो यहां पे हम देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल इट इज AN एंड द। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। A और AN बोला है, यानी दीज आर कॉमन। वाई दे आर कॉमन ये भी हम देखेंगे, और उसके साथ साथ एंड द वेयर A यूज करना, वेयर एन यूज करना, वेयर द यूज करना है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स आई विल एक्सप्लेन यू। सो A और एन ऑलमोस्ट ऑल दे आर सिमिलर, बट फ्यू रूल है, कुछ रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट यूज करते हैं। कभी ये जहाँ यूज करना वहाँ एन यूज नहीं होता है। दे आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। दीज आर ऑल, जैसे मैंने बताया आर्टिकल्स में ये 3 है, फेमस है, वेल नोन है, एवरीबडी नोज दीज AN एंड द, एंड दे आर रियली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। These 3 they are really a demonstrative adjectives. How they work, how we use them, let's see. First I'll start from A और AN। सारे एक साथ में कराने से अच्छा पहले मैं एक स्टेप बाय स्टेप करूं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं A और AN को हम कैसे यूज करते हैं। इसके साथ साथ ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं ग्रामर लैंग्वेज में, लेट अस सी। सो A और AN इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल। ये जो है वो डेफिनिट आर्टिकल नहीं है। तो डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है, फर्दर इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड। सो दिस A और AN इज कॉल्ड द इनडेफिनिट आर्टिकल, दे आर नॉट डेफिनिट। इसी बेसिस पे हम इन दोनों का यूज करते हैं। दे आर इनडेफिनिट आर्टिकल। व्हाई? बिकॉज दे आर यूज्ड when we do not speak of any particular person, particular thing और particular place। एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, पर्टिकुलर थिंग के बारे में, या फिर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जब हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, डेफिनिट पर्सन, वो ही पर्सन। सो इन दैट केसेस वी यूज दिस A and AN। जैसे कि एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट। अ बॉय, अब ये बॉय कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलरली कोई नोन या फिर डेफिनेटली वो ही बॉय है, वो चीज़ नहीं, कोई भी। सो आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट। इन द सेम वे आई फाउंड एन अम्ब्रेला लाइंग इन द कॉर्नर। एन अम्ब्रेला, ज़रूरी नहीं है कि वही अम्ब्रेला जो मैंने घुमाया है, कि जो टूट गया है, कि जो रिपेयर कराया है, कि पर्टिकुलरली एक उसी चीज़ को हम नहीं बता रहे। एन अम्ब्रेला, कोई भी अम्ब्रेला नॉर्मली। सो इनडेफिनिट, there is no definity of the noun here। without any definity जब यूज होता है तो वो वहां पे क्या यूज होता है, A और AN। ओके, हाउ वी यूज, इसके कुछ रूल्स है यूज ऑफ A और AN। सो लेट मी मूव टूवर्ड्स दैट नाउ। कहाँ इसको यूज करते हैं, किस वे में यूज करते हैं, कुछ रूल्स है दैट यू ऑल नो। फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, how many alphabets are there? Yes, 26 letters है इंग्लिश में, that is A to Z। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपको कि vowels आपको पता है, yeah, obviously everybody is familiar with vowels। Vowels they are 5 in number, they are A, E, I, O and U।
जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर। हिंदी में दे आर मेनी इन नंबर बट इन इंग्लिश दे आर ओनली 5 A E I O U। ये जो है वो है वोवेल्स। इसको छोड़ के जो बाकी 21 लेटर्स है, जो 21 अल्फाबेट्स है, वो है कॉन्सोनेंट्स। तो अब आप सोचोगे मैम इसको क्यों एक्सप्लेन किया, और जिसको पता है उसको पता ही है कि मैम ने इसका इंट्रोडक्शन हमको क्यों कराया है। व्हाई शी। सो लेट्स सी हाउ वी यूज दिस A एंड AN। और उसको यूज करने में जो ये वोवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट्स है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the use of this A and AN. Let's see now. So A, it is used. Where A is used? A is used first. Words beginning with the sound sound of consonants। जहां पे कॉन्सोनेंट्स का यूज होता है, 21 अल्फाबेट्स जो कॉन्सोनेंट्स है वो जहां यूज होता है, फॉर एग्जांपल जो वर्ड कॉन्सोनेंट्स से यूज होते हैं, A E I O U को छोड़ के अल्फाबेट्स जो आता है फर्स्ट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं बॉय। अब बॉय के पहले हम क्या प्लेस करेंगे यहाँ पे? सो A या ये N, ओके, दैट इज A। In the same way, if I write woman, woman के पहले क्या यूज करेंगे हम? A यूज करेंगे। fruit, fruit के पहले A यूज करेंगे। and tree और tree in this way, जैसे कि B F W T, इसके साथ साथ हम A को छोड़ के B C D E को छोड़ के F G H, इस वे में जो भी अदर 21 अल्फाबेट्स है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से जब कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है, if any word is started from or by the help of consonants, then before that word we use A। A कहाँ यूज होता है? It is just used just before the words which are started with the consonants। consonants को यूज करके जिस वर्ड्स को हम यहाँ पे फॉर्म करते हैं, फॉर्म होता है जो यूज करते हैं, उसके पहले we always use A। so this is the one rule, words beginning with the sounds of consonant, ये one है। then second use, second कहाँ हम यूज करते हैं? जैसे कि such vowels as have the sound, जो साउंड यहाँ पे एक्सप्रेस करता है वो क्या होगा? वाई यू क्या हुआ? यू। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? यू। अब इसको बताने के लिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपको बता रही हूं। लेट्स सी हाउ द वर्ड्स विच साउंड्स विद दिस अल्फाबेट्स, तो उनको भी हम, जैसे कि वो स्टार्ट वोवेल से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? वोवेल ही हुआ ना। आई हैव मेंशन्ड हियर यू। यू जो है
वो यहाँ पे ओवल ही है, बट यहाँ पे वी विल नॉट यूज एन, इंस्टेड वी विल यूज ए. ए इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द वर्ड्स beginning with such sounds. Which sounds? The U. U sounds जो पहले यहाँ पे आ जाता है. उन शब्दों, उन यूज करके जो शब्द बनते हैं, उन शब्द से पहले हम क्या प्लेस करेंगे? यहाँ पे ए प्लेस होता है. नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, along with this we can see a utensil, a uniform. ऐसे ही जो भी वर्ड्स यहाँ पे यू साउंड्स यूज होके जो बिगिन होते हैं, जो स्टार्ट होते हैं, उन शब्दों से पहले हम क्या यूज करेंगे? बिफोर दैट वर्ड्स वी विल यूज ए अल्फाबेट. तो फर्स्ट इट वाज जस्ट बिफोर द कॉन्सोनेंट्स एंड जस्ट बिफोर द साउंड ऑफ यू. Just before the sound of you we will use this A. And what is the third rule? Let's see. Third, it is same. O. O जहाँ यूज होगा when it is sounded, when it sounded as व. हिंदी में व. तो जैसे कि हम लिखते हैं वन हैंडेड. वन हैंडेड जब हम वर्ड यूज करते हैं, वन हैंडेड पर्सन हम कह सकते हैं. तो वन हैंडेड, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे. ए एन नहीं, बल्कि जबकि हम देखते हैं ओवल्स में वो भी आता है, बट यहाँ वो से शुरू होने के बावजूद इसका साउंड क्या होता है? वहां पे व आता है. तो उसकी वजह से, बिकॉज इट साउंड्स व, व्हेन वी रीड इट O-N-E, we read it O, but when we read the word, we read it as one. The v sound is used to pronounce this one. At that time we use A just as an article before this noun. Along with this, one-eyed, along with this, a 1 rupee coin, वन रुपी नोट. जहाँ जहाँ ये वन के लिए स्पेशली जहाँ पे वाह प्रोनाउंस हो रहा है, जहाँ वाह साउंड आ रहा है, उनके आगे हम क्या यूज करेंगे? ए. सो कीप इट इन माइंड. कॉन्सोनेंट्स, उसके साथ साथ यू साउंड, उसके साथ साथ व साउंड. इससे जो वर्ड्स बिगिन होते हैं उनके आगे ऑलवेज हम क्या प्लेस करते हैं? द आर्टिकल ए इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द वर्ड्स विच बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट्स, with the sound U, with the sound W. So this is how today I clarified you or I explained you to use A. Later on an and the we will see in the next class. So work hard.